Hello, dear friends of class 8th. How are you all? Imagine, friends, you visit your neighbor's garden. You expect flowers, greenery, beauty, but instead, you see a garden full of stones. And wait, it gets even stranger. You talk about a beautiful flower for 15 minutes, and then suddenly you realize you were standing on that flower the whole time. Sounds funny, confusing, or little crazy? Today we are going to explore a poem that is humorous, surprising, and full of imagination. A concrete example. Let's find out why Mrs. Jones loved her strange garden and what makes this poem so interesting. But before that, they have given us some questions, some things to talk about. So we'll complete this and then we'll go to our point. So what is it? Read the names of the items you usually find in the garden and write their name against each picture. So you have to find what is this. Okay. So like for example, if we talk about this is jhadiyan, so this is hedge. Okay. So this is number one. This is it is called wheelbarrow. So this is wheelbarrow. You can write it here. This is third one is called sapling. So there is sapling. This is third, right? Sapling. So you will write here sapling. And if you talk about this is a pot. Fourth, you can write here. These are pebbles. Kankar patthar bolte hain inko. So this will becomes you will write it here. Okay. Then next is a rockery. Now rockery is like something like this. I'll show you here. This is rockery. Okay, patthar, and then uske charo taraf you will find out some plants. And then we talk about what this is garden hose. So garden hose is like here, and this is flower bed. This is like बेल. This is called wine. जैसे कि आपने देख नाम सुना होगा, ग्रेप वाइन होती है ना, अंगूरों की बेल. And this is fence. So these are few things. Pictures are given, and we have to write down their name. Next is work in groups of four. This is your class teachers or subject teachers rather. This is your subject teachers work. What kind of garden would you like to have? Mention the features that you can include and reason for your choice. Share your answer with your classmate and teacher. तो आपको तो पता नहीं. I'll talk about myself. अगर मेरा कोई garden होगा तो वो इस तरह का garden होगा. See what beautiful garden it is, है ना? Different kinds of flowers, different colors. There is a pavement path है. There is a small spring है. और there is bridge है, and there are trees and lights, and everything is so beautiful. I think everyone would love to stay here. Next is read the title of the poem. What comes to your mind when you read the word concrete? Concrete means something solid, कुछ ऐसा solid सा concrete होता है. क्योंकि हम बचपन से we have studied concrete and abstract noun, right? Abstract is something which we cannot touch, we can only feel. Concrete is something we can touch. तो concrete का मतलब होता है solid. Does it have more than one meaning? तो हाँ, इसके कई मीनिंग होते हैं. शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट. तो आइए इसकी बात कर लेते हैं. तो इसके कई मीनिंग है. कॉन्क्रीट नाउन की तरह अगर आप इस्तेमाल करोगे इसको, तो इट इज लाइक अ हार्ड मटेरियल यूज टू मेक बिल्डिंग एंड रोड्स. ठीक है, कॉन्क्रीट जिससे हम रोड वगैरह बनाते हैं. और अगर आप एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करना चाहोगे तो समथिंग दैट इज रियल, सॉलिड एंड डेफिनेट, नॉट एब्स्ट्रैक्ट और इमेजिनरी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया. तो in the poem's title, Concrete Garden, it suggests that garden is made of stones or hard things instead of soft plants, which feel unusual and different from normal garden. तो ये तो सब पहले की बात हुई. We'll now straight away move to the actual poem. Mrs. Jones के बारे में है ये, and the poet is talking about Mrs. Jones, who's a next door neighbor, मतलब उसकी पड़ोसी है. ठीक है, तो आइए एक एक करके इस पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं, and then we will discuss कि इसके अंदर क्या गिवन है. The poem is like this. My next door neighbor, Mrs. Jones, has got a garden full of stones, a crazy park,
A lily pond, a rockery, and just beyond, a sundial with a strange device which Mrs. Jones thinks rather nice. तो इन लाइंस में द पॉइंट वांट्स टू से कि मेरे बगल में रहने वाली, अब मेरी बगल का मतलब ये नहीं कि मेरी बगल में, मतलब मेरे पड़ोस में रहने वाली जो मिसेस जोन्स है, उनके पास पत्थरों से भरा हुआ एक बगीचा है और उसमें एक अजीब सा रास्ता भी है और एक पॉन्ड है जिसमें कई सारे लिलीज हैं, पत्थरों से सजावट कर रखी है और इसके आगे एक सनडायल है। सनडायल क्या होती है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज सनडायल, ओके, दिस इज सनडायल। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो सन की लाइट, सन की रेज से यूज करके और टाइम बताता है। तो यहाँ पर ये जो सनडायल है, इसमें एक बहुत ही स्ट्रेंज डिवाइस लगा हुआ है और जो मिसेस जोन्स हैं उनको ये सब बहुत अच्छा लगता है। उनका जो बगीचा है, उनका जो गार्डन है, वो बाकी के नॉर्मल गार्डन से थोड़ा-सा अलग है और थोड़ा-सा यू नो स्ट्रेंज दिखाई देता है, विचित्र दिखाई देता है। लेकिन उनको अपने इस अनोखे बगीचे पर बहुत ही गर्व है। तो वो तो ये समझती है कि मेरा जो बगीचा है, मेरा जो गार्डन है, वो एक्चुअल में अच्छा है। My next door neighbor, Mrs. Jones, put little plants between the stones. They are so delicate and small if they don't mean anything at all. I can't think how she gets them in unless she plants them with the pin. तो मिसेस जोन्स जो है वो पत्थरों के बीच छोटे छोटे पौधे लगाती हैं। ये पौधे बहुत ही डेलिकेट यानी कि नाजुक होते हैं और छोटे होते हैं, इतने छोटे कि देखने पर ऐसा लगता है कि इनकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है और पोएट को समझ में ये नहीं आता है कि वे इन्हें एक्चुअल में लगाती कैसी होगी इतनी छोटी चीज को, और उसे लगता है कि जैसे वे इन्हें पिन से लगाती होगी। My dear neighbor, Mrs. Jones, once asked me round to see her stones. We stood and talked about a flower for quite a quarter of an hour. Where is this lovely thing? I cried. You are standing on it, she replied. तो देखो यहाँ पर कितनी मस्त चीज है। वो कह रहे हैं कि एक दिन जब मिसेस जॉन ने मुझे अपने बगीचे में बुलाया, हम एक फूल के बारे में लगभग 15 मिनट तक बात करते रहे। तो मैंने पूछा, अरे मिसेस जोन्स बता दो वो सुंदर फूल है कहाँ? तो मिसेस जॉन बोलती है, महाराज आप उसी के ऊपर तो खड़े हो। ये सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। पोइट ही ने ऐसा कहा क्योंकि फूल तो बहुत ही छोटा था। इतने छोटे फूल पे भी जो है इनको गर्व हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि जो गार्डन था वो बहुत ही अनोखा और अलग सोच वाला गार्डन था। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे क्वेश्चन आंसर। लेट अस डिस्कस में क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग समरी विद एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द पोएम। वन हैज एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड योर टीचर। ओके, तो द पोएम डिस्क्राइब्स मिसेस जोन्स द स्पीकर नेक्स्ट डोर नेबर। तो ये जो वर्ड है ये नेबर, ये पोएम से लिया गया है। हु हैज अ यूनिक गार्डन फिल्ड विद डैश। तो उनका गार्डन जो है वो स्टोन से भरा हुआ था, तो यहाँ पर आप लिख देंगे स्टोन्स। हर गार्डन इंक्लूड्स अ पेक्यूलियर डैश। क्या था वहां पर, एक तो क्रेजी पाथ था, पॉन्ड था, रॉकरी था और एक अनयूजुअल चीज और थी वहां पर जिसको हम सनडाइल बोलते हैं। तो अब तक फर्स्ट वाला है उसका आंसर हमने स्टोन्स लिख दिया, क्रेजी पाथ लिख दिया, सनडाइल लिख दिया। दैट शी फाइंड्स चार्मिंग। मिसेस जोन्स प्लांट्स टाइनी डैश प्लांट्स। तो वो प्लांट्स कैसे थे, जो छोटे छोटे थे, वो डेलिकेट थे। यू विल राइट हियर डेलिकेट। बिटवीन द स्टोन्स विच द स्पीकर थिंग्स मस्ट बी सो स्मॉल दैट दे आर प्लांटेड विद अ पिन। तो आप यहाँ पर पिन लिखेंगे। तो यहाँ पर आ गया फोर्थ डेलिकेट और फिफ्थ आ गया पिन। वन डे मिसेस जोन्स इनवाइट्स द स्पीकर टू सी हर गार्डन एंड दे डिस्कस किसके बारे में डिस्कशन हुआ था, इट वॉज अबाउट अ फ्लावर that Mrs. Jones treasures. When the speaker asked where is the a lovely flower, तो मिसेस जोन्स ने जवाब दिया कि द स्पीकर हैज बीन स्टैंडिंग ऑन इट। तो इस तरह से ये सारे आंसर्स हो गए आपके यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द टोन ऑफ द पोएम इज। टोन पोएम की कैसी है, मॉकिंग यानी मजाकिया, मजाक उड़ाया जा रहा है,
ह्यूमरस है, मॉर्नफुल यानी कि दुखी, अम्यूजिंग या लाइट हार्टेड, किस तरह की पोएम है। यहाँ पर इन्होंने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहली बात तो इसमें ह्यूमर काफी है, ह्यूमरस है ना, अम्यूजिंग भी है और लाइट हार्टेड भी। तो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन किसमें है? सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन, डी इज द करेक्ट आंसर। द स्पीकर इन द पोएम इज, कौन है स्पीकर? मिसेस जोन्स, द पोएट, गार्डनर या चाइल्ड? तो बोल कौन रहा है? पोइट बोल रहा है, तो पोइट इज द स्पीकर। थर्ड है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? राइम स्कीम क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना, एंड वाले जो वर्ड्स हैं वो मिलने चाहिए। जैसे लाइक इफ शी इज टॉल शी विल नॉट फॉल, तो ये जो टॉल और फॉल है ये राइमिंग स्कीम होती है। तो हम राइमिंग स्कीम में जो चीज़ें मिलती रहती है ना, उनको हम ए के लेटर से शो करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर टॉल था और टॉल का हमने ए किया तो फॉल उससे मिलता जुलता है, वो ए आ जाएगा। थर्ड लाइन में मान लो अगर कोई और वर्ड आ जाएगा तो उसको हम बी मान लेते हैं। इस तरीके से राइमिंग स्कीम बताते हैं। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, आइए पहले देखते हैं। तो इसकी राइमिंग स्कीम में मिसेस जोन्स और स्टोन्स, तो ये अगर हम ए और ए दिखा दें, उसके बाद पॉन्ड और बियॉन्ड ये दोनों सेम है तो इनको हम अलग लेटर से शो करेंगे, बी बी। और ये डिवाइस एंड नाइस, तो ये होगा सी और सी। तो यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी बी और सी सी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट वाला, ए बी बी एंड सी सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं कुछ। द पोइट यूजेस द वर्ड स्टोन्स इन ऑल स्टेंजा इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज हर, क्या बताना चाहता है? ऑब्सेशन विद स्टोनी गार्डन या प्राइड इन गार्डनिंग? तो ये बताता है कि उसको पत्थरों को लेकर कितना ऑब्सेशन था, कितना वो जो है इस चीज को मानती थी कि पत्थरों से ही जो है खूबसूरती बढ़ती है गार्डन की। Second है, the poet uses imagery to describe features of garden that help readers dash understand Mrs. Jones' love for plants या visualize the garden's peculiar nature। तो यहाँ पर जो पोइट ने यूज किए हैं, इमेजरी वर्ड्स यूज किए हैं गार्डन को डिस्क्राइब करने के लिए, वो इसलिए ताकि जो अ, उसका जो गार्डन है वो कितना पेक्यूलर है, स्ट्रेंज है, उसको विजुलाइज करवाने के लिए। देन पिक एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द। एलिट्रेशन इज एक्चुअली एक पोएटिक डिवाइस है ये। इसमें क्या होता है, एलिट्रेशन का मतलब होता है व्हेन टू और मोर वर्ड्स है ना, दो या दो से ज़्यादा जो वर्ड्स हैं वो सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे हों या बार बार यूज़ हो रहे हों, उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हम बोल सकते हैं टेस्टी टमाटर। वैसे टमाटर इज अ हिंदी वर्ड, टेस्टी टमाटो, तो ये टी और टी से स्टार्ट हो रहा है ना, सेम साउंड। दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। तो हमें पोएम में से कुछ एलिट्रेशन ढूंढनी है। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए ढूंढ रखी है एलिट्रेशंस यहाँ। जैसे कि आप देख सकते हो, जी साउंड का है गॉट अ गार्डन, तो ये ग और ग। एस साउंड का अगर आप देखोगे, सनडाइल विद अ स्ट्रेंज। पी साउंड का अगर आप देखोगे, पुट्स लिटिल प्लांट्स, तो ये प प। और यहाँ पर भी है प्लांट्स देम विद अ पिन। क्यू साउंड की अगर आप बात करोगे, क्वाइट क्वार्टर। तो ये जो सब चीजें हैं ये एलिट्रेशन की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है, a refrain is a repeated line or phrase that appears in each stanza. Identify the refrain from the poem। तो अगर आप refrain की बात करोगे तो आप इसको देखो, यहाँ पर हर जगह जो है माई नेक्स्ट डोर मिसेस जोन्स, फिर यहाँ पर भी है माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स, यहाँ पर भी है माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स। तो एक्चुअली यही वो चीज़ है जो हम यहाँ पर अभी बात कर रहे थे। दिस इज अ refrain। Sixth is irony is a literary device that emphasizes the difference between what is expected and what actually happens. It often involves a situation where the outcome is the opposite of what is expected, creating a surprising or humorous effect. For example, Mrs. Jones' excitement about her garden contrasts with the speaker's disappointment on how ordinary it is. Identify the line from the poem that displays situational irony. तो आयरनी इज एक्चुअली क्या होता है, इट इज अ टेक्निक जहाँ जो हम यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। मतलब एक का व्यू कुछ और है, दूसरे का व्यू कुछ और है, उसकी सोच कुछ और है, तो इन दोनों के टकराव के, इन दोनों की सोच के टकराव को आयरनी कहा जाता है। तो हमसे यहाँ कहा गया है कि हमें जो है कुछ लाइंस यहाँ से सेलेक्ट करनी है जो आयरनी को दिखाती है।
तो ऐसी एक सिचुएशन थी जब वो बहुत ज़्यादा बोली जा रही थी अपने एक फ्लावर के बारे में, 15 मिनट तक डिस्कशन हो चुका था, फ्लावर ऐसा, फ्लावर वैसा। तो आखिर में जो पोएट है वो बोलता है कि भैया फ्लावर है कहाँ? ये तो बता दो, वेयर इज़ दिस लवली फ्लावर? तो वो बोलती है कि भैया उसी पे तो तुम खड़े हो, है ना? तो दिस इज़ लाइक अ सिचुएशनल आयरनी। 7th है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अप्रोप्रिएटली द वर्ड कंक्रीट कैन रेफर टू। अब इन मिसेस जोन्स के गार्डन में कंक्रीट का मतलब क्या था? इट वाज अबाउट यू नो स्टोन्स, या फिर हम बात कर सकते हैं किसकी, हार्ड सरफेस की, है ना? ये दोनों ही जो है कंक्रीट थे जो जोन्स के गार्डन के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट है द टाइटल, सॉरी, द टाइटल आल्सो हैज अ सिंबॉलिक मीनिंग एज द पोएम प्रोवाइड्स अ क्लियर और कॉन्क्रीट एग्जांपल ऑफ मिसेस जोन्स डैश गार्डनिंग हैबिट। तो जो गार्डनिंग हैबिट्स थी वो अनयूजुअल थी, है ना, थोड़ी अजीब थी, या फिर हम बोल सकते हैं पेक्यूलियर गार्डनिंग स्टाइल था, बड़ा अजीब सा गार्डनिंग सा स्टाइल था उनका। तो इस तरीके से आप जो है ये आंसर हो गया आपका फर्स्ट का फिलअप, और ये जो है आपका सेकंड फिलअप हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आइए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। So they have given an extract from the poem, and they want us to answer the following questions. My next door neighbor, Mrs. Jones, had got a garden full of stones, a crazy path, a lily pond, a rockery, and just beyond, a sundial with a strange device which Mrs. Jones thinks rather nice. अब इसके बेसिस पे यहाँ पर इन्होंने हमसे 4-5 क्वेश्चंस पूछे हैं, आइए इनके एक एक करके जवाब देते हैं। पहला सवाल है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट मिसेस जोन्स टेस्ट इन गार्डनिंग फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ गार्डन बीइंग फुल ऑफ स्टोन? तो हम लिखेंगे मिसेस जोन्स प्रीफर्स अ यूनिक एंड अनयूजुअल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। उनका यूनिक टेस्ट है गार्डनिंग का और अनयूजुअल स्टाइल है। सेकंड है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। और स्टेटमेंट है, द गार्डन serves as a means to reveal more about Mrs. Johns herself. So this actually is true. ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो गार्डन था वो एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन था मिसेस जोन्स के कैरेक्टर की। उनका मेन फोकस जो था वो गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स पे था, लिटिल प्लांट्स पे था, डेलिकेट चीज़ों पे था। और वो जो है वो अजीब चीज़ों में खूबसूरती ढूँढती थी जो कि मतलब अनकन्वेंशनल थी, है ना? और द फैक्ट कि शी कैन टॉक अबाउट सिंगल टाइनी फ्लावर फॉर अ क्वार्टर और टाइम, मतलब 15 मिनट तक एक छोटे से फूल के बारे में बात करी जा रही है, तो कितना पेशेंस होगा उसमें। और यू नो, सो इट एक्चुअली दिस होल थिंग serves as a mean to reveal more about Mrs. Jones herself rather than the garden. Third है, what does the poet mean by crazy path? तो पोएट का यहाँ पर कहना था कि वो पाथ क्रेजी इसलिए है क्योंकि वो जो है टेढ़ा मेढ़ा इरेगुलर पाथ दिखाई दे रहा था। What does the sundial with a strange device suggest about Mrs. Jones' personality? क्या दिखाता था वो जो सनडायल हमने देखा था? तो ये दिखाता है कि उनका जो है अनयूजुअल आइटम्स के साथ बहुत ही तगड़ा फैसिनेशन था। वो बहुत जो है अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं ये अनयूजुअल चीज़ों की तरफ। अब आगे क्वेश्चन आंसर्स, आइए इनको फटाफट से देखते हैं। पहला है, हाउ डज मिसेस जोन्स फील अबाउट हर गार्डन? सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो वो अपने गार्डन के बारे में कैसा फील? तो मिसेस जोन्स जो है वो बहुत ही प्राउड और अपने गार्डन के लिए बहुत ही लगाव रखती थी। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर गार्डन। एविडेंस क्या है? द पोइम सेज विच मिसेस जोन्स थिंक्स रेदर नाइस, है ना? तो वो सनडाइल के बारे में बोल रही थी कि वो बहुत ही अच्छा है, गार्डन के बारे में बोलती थी कि अजीब होगा लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो फिर उसने क्या किया, स्पीकर को इनवाइट किया गार्डन में दिखाने के लिए। तो जो भी चीज़ें उनके पास थी वो उनकी वैल्यू करती थी और उनको शेयर करती थी लोगों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर डिस्क्राइब्स द प्लांट्स आर एज बीइंग सो स्मॉल दैट दे कुड बी प्लांटेड विद अ? तो स्पीकर ने या पोइट ने ऐसा क्यों कहा? तो वो ये बताना चाहता था, ये समझाना चाहता था हमें कि कितने छोटे और डेलिकेट वो प्लांट्स थे जिनके बारे में वो बातचीत कर रहे थे। इट ऑल्सो एड्स अ ह्यूमरस एग्जैजरेशन शोइंग दैट द प्लांट्स आर सो स्मॉल दैट दे सीम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्लांट नॉर्मली। मतलब उनको आसानी से नॉर्मल तरीके से उनको उगाया नहीं जा सकता, इतने छोटे छोटे थे वो।
थर्ड है व्हाई डू वी गेट टू नो अबाउट मिसेस जोन्स बेस्ड ऑन हर गार्डनिंग स्टाइल एंड हर इंटरेक्शन विद द स्पीकर। तो क्या हम जानते हैं, क्या हमें पता लगता है मिसेस जोन्स के बारे में? पहली बात जो हमें पता लगती है वो ये है कि उनका जो है यूनिक टेस्ट है, आर्टिस्टिक टेस्ट है, वो पत्थर, रॉकरी और टाइनी प्लांट्स में ज़्यादा खुशी ढूंढती है। वो पेशेंट है और डिटेल ओरिएंटेड मतलब वो हर एक प्लांट के बारे में बहुत डिटेल में जाकर बता रही है अपने गार्डन के बारे में। फ्रेंडली है, प्रोवाइड है, वो स्पीकर को इनवाइट करती हैं अपना गार्डन दिखाने के लिए। तो ये तीन चीज़ें तो हम डेफिनेटली मिसेस जॉन्स के बारे में इस पोएम के थ्रू समझ चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन है द पोएम पोर्ट्रेज मिसेस जोन्स इन अ पॉजिटिव लाइट, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। तो इतना अजीब होने के बाद भी वो पॉजिटिव कैसे दिखाई गई है? पहली बात तो वही है कि अपनी गार्डनिंग को लेकर वो बहुत पैशनेट हैं, शी इज़ पैशनेट अबाउट गार्डनिंग। और वो खूबसूरती छोटी-छोटी चीज़ों में, अनयूजुअल चीज़ों में ढूँढती है। काइंड है, सोशल है, लोगों को इनवाइट करती है। इवन दो द टोन इज़ स्लाइटली ह्यूमरस, इट इज़ जेंटल एंड रिस्पेक्टफुल, नॉट मॉकिंग। तो वो जो है किसी का मज़ाक नहीं उड़ा रही है, ठीक है? पोएम में ह्यूमर है लेकिन मॉकरी नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसका वो है व्हाट डज द पोएम टेल अस अबाउट द वे पीपल थिंक डिफरेंटली अबाउट द वर्ल्ड अराउंड। तो जो लोग थोड़ा सा अलग सोचते हैं बाकी दुनिया से, तो उनके बारे में लोग अपनी राय क्या बनाते हैं, ये हमें बताना है। तो पोएम हमें ये बताती है कि लोग एक ही चीज़ को अलग-अलग नज़रिए से देख सकते हैं। मिसेस जोन्स जो है, उनको टाइनी प्लांट्स ब्यूटीफुल और इम्पोर्टेंट लगते हैं। स्पीकर को लगता है ये इतने छोटे हैं और इनसिग्निफिकेंट है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इनकी। तो दिस टीचेस अबाउट द ब्यूटी एंड वैल्यू डिपेंड ऑन पर्सनल पर्सपेक्टिव। आप क्या सोचते हो उस चीज़ पे किसी भी चीज़ की खूबसूरती डिसाइड होती है। आपको रोज़ का फ्लावर अच्छा लगता है, किसी को लोटस का फ्लावर अच्छा लगता है ना? तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सनल पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है लेट अस लर्न सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स दैट करेक्टली रिप्लेसेस द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस गिवन है एंड देयर इज अ वर्ड व्हिच इज अंडरलाइन। आपको बताना है इन ऑप्शंस में से अंडरलाइन वर्ड को सबसे बेस्ट तरीके से कौन रिप्लेस कर सकता है। अ सनडायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, तो स्ट्रेंज जो है वो एक्चुअल में यहाँ पर आना चाहिए पेक्यूलियर, ठीक है? विच मिसेस जोन्स थिंक रैदर नाइस। अब यहाँ पर नाइस किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है? प्लेजेंट, सुपीरियर, एग्रीएबल, जेंटल या चार्मिंग? तो ये होगा प्लेजेंट। दे आर सो डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब क्या होता है? डिलीशियस ना, फ्रेजाइल, डेंटी, ग्रेसफुल, वीक। तो फ्रेजाइल जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, जो आसानी से टूट जाए। वेयर इज दिस लवली थिंग आई क्राइड। तो क्राइड का मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पर रो रहा था, वो पूछ रहा था ना, एक्सक्लेम कर रहा था। तो एक्सक्लेम्ड इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है द सनडाइल इज रेफर्ड टू एज अ डिवाइस इन द पोएम। सनडाइल को जो है डिवाइस की तरह दिखाया गया है। वर्क इन पेयर्स टू इन्फर द मीनिंग ऑफ डिवाइस, शेयर योर थॉट्स विद योर क्लासमेट्स, नाउ मैच द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट्स दिए कॉलम 1 में, उनकी डेफिनेशन दी है कॉलम 2 में, और उनकी एग्जाम्पल दी है कॉलम 3 में। तो आपको ये मैच करने हैं। इम्प्लीमेंट क्या होता है, टूल क्या होता है, इक्विपमेंट, अप्लायंस, गैजेट कौन सा होता है? आई एम श्योर गैजेट के बारे में तो सब कोई जानते होंगे ना, ठीक है? क्योंकि आजकल आप इनका बहुत इस्तेमाल कर रहे हो गैजेट्स का। और एग्जाम्पल्स भी आपको पता है कि गैजेट्स क्या होंगी, मोबाइल और फ़ोन और लैपटॉप होगा। तो यहाँ से इनकी डेफिनेशन निकालनी है। तो बेसिकली इन तीनों को आपको मैच करना है। मैं ये ऑलरेडी मैच कर चुका हूँ आपके लिए, मैं आपको आंसर दिखा। तो पहला है इम्प्लीमेंट, इसकी एग्जांपल होगी स्पेड, नाइफ, सिकल, एक्स। और ये क्या होता है? हाथ से इस्तेमाल करने वाला या रिपेयर करने वाली चीज़ होती है, ठीक है? टूल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल है हैमर, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर्स, रेंच। तो जब हम हाथों को हिलाकर जब किसी काम को करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड, जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ अ टूल, ठीक है? जैसे कि आप हथौड़ी से कोई कील ठोक रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। इक्विपमेंट क्या है? जैसे क्रिकेट के बैट हो गए, हेलमेट, ग्लव्स, लेबोरेटरी अपरेटस हो गए। ये वो नेसेसरी आइटम्स हैं जो किसी खास काम को करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अप्लायंस हमें पता है घर में मिक्सर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, ये सब होते हैं इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते हैं जो घर में इस्तेमाल होते हैं। गैजेट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल बाय मेकिंग न्यू वर्ड्स इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2, रिप्लेस द फर्स्ट लेटर गिवन
गिवन वर्ड टू क्रिएट न्यू वर्ड्स, एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। जैसे यहाँ पर इन्होंने कॉलम 1 में नाइस दे रखा है, डाइस कट इनटू स्मॉल पीसेस, और यहाँ पर हमसे ये मांग रहे हैं। तो कट इनटू स्मॉल पीसेस इज डाइस, ग्रीन दैट वी कुक, तो वो हो जाएगा आपका राइस, है ना। तो उसके बाद प्लूरल ऑफ माउस इज माइस, और बैड हैबिट इज कॉल्ड वाइस, तो VICE। तो ये सारे जो है आप देखो राइमिंग वर्ड्स हो गए आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है सॉइल, ठीक है। हीट समथिंग, इट इज कॉल्ड बॉयल। देन ये कैसा बॉयल है, BOIL, यहाँ लिख देंगे आप। वर्क वेरी हार्ड is toil, TOIL. Then length of a wire in a circle is coil, और लास्ट में होगा शीट्स ऑफ टू रैप फूड्स, दैट इज फॉइल, है ना, फॉइल पेपर। तो यहाँ पर आप लिख देंगे। नाउ लेट अस लिसन, you will listen to a presentation about the wonderful rock garden of Chandigarh. I have seen this. मैं एक बार गया था चंडीगढ़, तो वहाँ पर मैंने देखा था। It is a beautiful garden. As you listen, answer the following questions given 1 to 3 exact words from the presentation. Transcript for teacher on page is 47. तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हैं, हमें ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ना है। ट्रांसक्रिप्ट दी है पेज नंबर 47 पे। तो अगर मैं ट्रांसक्रिप्ट पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा, मैं आपको इसको जल्दी से समझा देता हूँ। रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़, एक बहुत ही यूनिक और ओपन एयर एग्जीबिशन है। इसे नेक चंद ने जो है 1957 में बनाया था। इस गार्डन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ वेस्ट मटेरियल से जो है वो चीज़ें बनी हुई हैं, ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स बने हुए हैं, आर्ट पीसेस बनाए गए हैं। ये गार्डन लगभग 40 एकड़ में फैला हुआ है, और इसमें कलरफुल स्टैचूज बने हुए देखने को मिलते हैं। गार्डन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जहां अलग अलग तरह की इंस्टॉलेशन है। इनमें टेराकोटा पॉट्स है, लाइट के फिक्सचर्स हैं, ब्रोकन आइटम्स तक का यूज़ किया गया है। और इस गार्डन में करीब 5000 स्टैचूज हैं। ये प्लेस बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इससे इंडियन पोस्टेज स्टैम्प पर भी दिखाया गया था, और नेक चंद को पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। ये गार्डन हमें सिखाता है कि वेस्ट चीज़ों से भी कुछ क्रिएटिव और वैल्यूएबल बनाया जा सकता है। अब इस बेसिस पे हमें जो है 2-2 3-3 वर्ड्स में हमें इनका आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज नेकचंद रॉक गार्डन फीचर, कहाँ फीचर हुआ था? इंडियन पोस्टेज स्टैम्प पे। व्हाट काइंड ऑफ स्कल्पचर्स डज द रॉक गार्डन हैव? तो कलरफुल स्कल्पचर्स हैं। हाउ इज द रॉक गार्डन डिवाइडेड? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया उसको, ठीक है। नेम एनी वन थिंग दैट हैज़ बिन ट्रांसफॉर्म इनटू पीस ऑफ आर्ट इन द रॉक गार्डन। तो जो टॉयलेट्स होते हैं ना, टॉयलेट्स की जो सीट्स होती हैं, वो जिस चीज़ से बनी होती है उसके टुकड़े ले लेके वहाँ पर जो है ब्रोकन टॉयलेट पॉट्स का इस्तेमाल करके और रॉक गार्डन में स्टैचूज वगैरह बनाए हुए हैं। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी स्टैचूज बॉर्डर द रॉक गार्डन? तो लगभग 5000 जो है वहाँ पर मौजूद थे। हाँ, ये देखिए ये क्या है, लेट अस राइट यू आर अ मेंबर ऑफ द नेचर क्लब ऑफ योर स्कूल। ड्राफ्ट अ नोटिस बनाना है आपको। यहाँ पर इन्होंने पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, और ये है आपका फॉर्मेट लिखने का, जहाँ पर आपका नेम, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल का नाम, नोटिस, डेट, टाइटल, बॉडी, और फिर आपका नेम, सिग्नेचर वगैरह यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया है ये ABC पब्लिक स्कूल एर्नाकुलम, नोटिस, डेट डाल दी है आज की, इनॉग्रेशन ऑफ हर्ब गार्डन। All the students of grade 6 to 8 are hereby informed that Nature Club of School is organizing the inauguration of Herb Garden. The program will be held on 10th April 9 a.m. in the school premises. The event aims to create awareness about the importance of medicinal plants and their use. All interested students are requested to be present on time and participate actively. For further details, students may contact Nature Club in charge, शाहरुख खान, सेक्रेटरी नेचर क्लब। तो ये तो ही मस्ती मजाक की बात दोस्तों, यहीं पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया। अगर आप SST या साइंस के सभी सब्जेक्ट्स के फुल नोट्स चाहते हैं विद MCQs, विद टेस्ट एंड एवरीथिंग, तो ऐसा एक बंडल मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। आप जा सकते हैं www.helloadhyapak.com पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर
जो बंडल क्रिएट किया है एसएसटी और साइंस के लिए इस वक़्त मैथ्स वगैरह के भी आएँगे। तो अभी जो मैंने किया है आप इनको जाकर देख सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक।